The land receives one of the highest rainfalls in India, enough to flood the great river Brahmaputra, and supporting one of the rarest lifeforms on Earth. Blessed with 2 UNESCO World Heritage Sites, Assam is one of the last wild habitats of Asian elephants in the country. Approximately 2.6 million years ago, the first ancestors of Asian elephants arrived in India, and since then, elephants have always been a part of India's cultural and natural heritage. Consuming up to 200 kilos of plant matter a day, elephants need large areas of forests to survive and meet their ecological needs. The increasing human pressure in Assam has brought elephants much closer to the villages. Loss of livelihood, property damage, injuries and deaths are major challenges faced by the society today. Finally, in 2006, Wildlife Trust of India addressed this issue, and intervened in the high conflict areas in Assam. To mitigate the threat, elephants were prevented from entering the villages. Avoidance strategies were put into action. A 24-kilometer-long solar hanging fence was installed at the village fringes surrounding Manas Tiger Reserve. Hanged on a necessary height, the solar-powered fence keeps an elephant away. However, it doesn't restrict movement of other small animals like this jungle cat. Recently, few locals have started planting biofences for peripheral protection. The tangy smell of lemon trees make a good barrier in keeping the elephants at bay. It also helps to mask the smell of stored crops and provides a secondary source of income to the farmers. In a country where humans and elephants share the same space, the local communities of Assam have mastered the art of coexistence by living peacefully with the largest land animals of the planet. Well, that videography has been supplied by the Wildlife Trust of India, showing the importance of elephant conservation and how they can stay in their habitat, move across cross habitats, while at the same time not be in conflict with the human population who are ever expanding into their domain. We saw the implementation of biofences as well. And to discuss this in more detail, we have with us Dr. Sandeep Kumar Tiwari, who is the Director and Chief of Conservation at the Wildlife Trust of India. Sir, a warm welcome to you on the Doordarshan Morning Show. नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका. And before we go into more detail regarding this interview with Dr. Tiwari, we would be also into the wild segment looking at other capsules as well. But let's have a brief with Dr. Tiwari regarding elephants. Why would you select elephants, sir, in your PhD study, and how important are elephants to any ecology? Well, if you look at elephants, they represents India's ethos. Elephant represents India's culture, is so intricately related with the culture that, you know, starting from Lord Ganesha to the way of life. So it teaches a lot of things. And if you look at elephant, that also symbolizes the way we human live. It's a thing that lives in a matriarchal society. It's a social animal. And the way it lives and the way it also acts as an architect of the forest. It's a flagship species. So if you are or umbrella species, so if you are saving an elephants, you are saving the entire ambit of plants and animals and the humanity as well. Right. So क्या-क्या challenges हैं elephants के लिए अगर हम बात करें तो? आज की सबसे बड़ी चैलेंज है एलिफेंट के लिए उसकी हैबिटेट, उसकी फॉरेस्ट. जिस तरह से जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, खंडित होते जा रहे हैं, दैट्स अ मेजर कंसर्न. तो अब आप देखोगे मैक्सिमम एरियाज में फॉरेस्ट छोटे होते जा रहे हैं और फॉरेस्ट के चारों तरफ ह्यूमन बींग्स, आदमी, इंसान आबादी रहता है. तो इंसान और हाथियों के बीच जो वो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ गई है, एंड दैट हैज़ इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट. और जो कनेक्टिविटी है हैबिटेट के बीच में वो धीरे धीरे खंडित होते जा रहे हैं.
So that's a major concern. Human wildlife conflict has increased tremendously in this country. तो वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि एलिफेंट्स जो हैं दे कंज्यूमिंग 200 किलोग्राम्स ऑफ फूड पर डे, और क्योंकि उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इतना इफ़िशिएंट नहीं है तो मैन्योर के तौर से दे आर एबल टू डेफिकेट एज वेल, बट दे आर कवरिंग अ ह्यूज एरिया अक्रॉस हैबिटेट. सो कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है फॉर एलिफेंट्स जिनको और ज़मीन चाहिए फॉर देयर हैबिटेट? तो जैसे बताया मैंने कि हाथियों को आप 4 शब्द से इंडिकेट कर सकते हैं. वो बड़ा है, और बड़ा है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है. जैसे आपने कहा कि 200 से 250 किलो उनको फूड लगती है. तो जब हाथी जिस जंगल में रहता है, आप उसको एक जंगल में कन्फाइन नहीं रख सकते हो, बिकॉज कन्फाइन रखोगे तो वो उस जंगल को खा जाएगा. सो दे नीड टू मूव फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर, एंड इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल that we need to facilitate that, and to facilitate that it's important that the connectivity between the two forests they are intact. So उनकी जो connectivity है, corridors है, वो intact होनी पड़ेगी, ताकि depending on season, किसी भी सीजन में एक जंगल में एक तरह के पौधे अच्छे होते हैं, दूसरे सीजन में कहीं ग्रासलैंड है तो उसको वहाँ मूव करना पड़ेगा, या गर्मियों के टाइम में पानी के लिए मूव करना पड़ेगा. तो ये जो कनेक्टिविटी रहती है, तो वो क्या करता है कि खंडित जंगल को जब कनेक्टिविटी से जोड़ता है तो एक लार्जर एरिया मिलता है इस हाथी को अपने जीवन को जीने के लिए और अपने लाइफ को सारे नीड्स की फुलफिलमेंट करने के लिए. जी, सो कंजर्वेशन के साथ साथ रेस्क्यू और रिहैब के लिए भी काफ़ी कार्यरत हैं आप. तो उसकी एक छोटी सी वीडियो है. बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, कैन वी हैव द वीडियो? As humans, we all share the desire to make a positive impact and be a part of something greater than ourselves. At Wildlife Trust of India, we turn this desire into action by giving orphaned wild animals a second chance at life. Often, young animals lose their mothers due to human-induced or natural causes. Once orphaned, their survival in the wild is impossible. Our skilled veterinarians and animal keepers step in to rescue these vulnerable individuals. At specialized centers in Assam and Arunachal Pradesh, they nurture these young ones and prepare them for the wild, just as their own mothers would have. Creating lasting solutions takes time. Rehabilitation programs take nearly 2 to 3 years, but it ensures we get the job done right. Today, our rehabilitated rhinos are mothers and even grandmothers to free wild calves. Our elephants have rejoined wild herds. Nearly 70 orphaned Asiatic bear cubs have been returned to the wild by WTI. Join us to be a part of these incredible legacies and help us keep wildlife wild forever. सर, ये जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं, वन ऑफ द रेस्क्यू सेंटर्स इज इन असम. तो वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स? जैसे असम में फ्लड्स भी बहुत आते हैं, तो किस तरह के एनिमल्स आप रेस्क्यू करते हैं या रिहैब करते हैं? देखिए, काजीरंगा की जो हमारी रेस्क्यू सेंटर है वो असम गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिश की गई थी, और इस्टेब्लिश इसलिए की गई थी कि 2-3 कारण थे. एक तो जैसे हमने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में एनिमल जब मूव करते हैं तो वो जब रेस्क्यू होते हैं तो उनको जगह चाहिए. सेकेंड थिंग, काजीरंगा के पूरा आप इकोसिस्टम को देखोगे तो वो फ्लड प्लेन पे है. तो ब्रह्मपुत्र जब फ्लडेड होती है तो पानी पूरा काजीरंगा में भर जाता है, और वो जब काजीरंगा में पानी भरता है तो एनिमल्स काजीरंगा से मूव करते हैं कार्बी आंगलोंग हिल्स के तरफ, और बीच में से नेशनल हाईवे जा रही है, गाँव है. तो ये एनिमल काफ़ी टाइम में डिस्प्लेस हो जाती है, काफ़ी टाइम में एक्सीडेंट्स होते हैं. तो इन जानवरों को बचाने के लिए यू नीड सम प्लेस टू ट्रीट देम. सो हमारी एक सेंटर वे बैक 2000 में ये क्रिएट किया गया था असम गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे ये एनिमल जो रेस्क्यूड होते हैं उनको ट्रीट की जाती है, और रेदर देन कीपिंग द लाइफ कन्फाइंड टू जूज और लाइफ टाइम सेंटर, हम इसे मौका देते हैं कि कैसे इनको फिर रिहेबिलिटेट करें इनके नेचुरल क्लाइमेट में. तो जब ये एनिमल, चाहे वो टी गार्डन्स में जो ट्रेंचेस बनते हैं वहाँ पे कभी डिस्प्लेस होते हैं, ट्रैप्ड हो जाती है, वहाँ से रेस्क्यू की जाती है, या फ्लड के समय जब एनिमल रेस्क्यू होती है, या कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में रेस्क्यू होती है, तो इन एनिमल्स को हम रेस्क्यू सेंटर्स में लाते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि उस एनिमल्स को हम कैसे जंगलों में रिहेबिलिटेट करें. तो एक एग्जाम्पल है, काफ़ी है
जहाँ पे मानस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो किसी कारण से पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण उस समय काफ़ी एनिमल्स वहाँ पे विलुप्त होने लगे थे, तो फिर हमारी जिस रेस्क्यू सेंटर से हाथी हो या राइनो हो, इनको हमने मूव किया इन मानस में। तो इससे दो चीज़ें हुई, एक तो इन एनिमल को एक लाइफ मिला कि ताकि वो जंगल में रह पाए, और साथ ही साथ मानस की जो एनिमल्स जो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगी थी, मानस को हमने रिपॉपुलेटेड किया, तो ब्रिंगिंग बैक मानस। तो ये रेस्क्यू सेंटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जानवर जूज या लाइफ टाइम सेंटर्स में ना रह जाएं, पर इनको और एक नया ज़िंदगी मिले और एक वाइल्ड में रह सके जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है। तो अगर जैसे जो रिहैबिलिटेशन की जो सिचुएशन आता है उसमें मदर इज किल्ड और शी इज डाइड फॉर सम रीजन, आइदर नेचुरल कॉजेज या बिकॉज इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, क्या पोचिंग इज ऑल्सो एन इशू एज फार एज द रेस्क्यू ऑफ एनिमल्स इज कंसर्न्ड? देखिए, काफ़ी कंडीशन में ऐसे होती है जो नेचुरल रीजंस में या इस तरह की जब जाती है तो मदर की डेथ होती है, या पोचिंग की कंडीशंस में मदर की डेथ होती है। तब ये जो एनिमल्स बचते हैं, जो बेबी बचते हैं, चाहे वो राइनो हो, चाहे एलिफेंट्स हो, या डियर स्पीसीज हो, या बेयर्स के स्पीसीज हो। हमारी और एक रेस्क्यू सेंटर है अरुणाचल प्रदेश में, पाके में। तो इन बच्चों को लाया जाता है, काफ्स को लाया जाता है, इनको एक मदर की तरह ट्रीट की जाती है। आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे कीपर्स होते हैं जो उनको फीड करते हैं, हमारे वेटनरियंस हैं जो उनके मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इंसानों की इम्प्रिंट उन पे ना पड़े। तो जितना ह्यूमन इम्प्रिंट कम पड़े वो कोशिश करते हैं। माँ को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, पर एक एलो मदर की तरह हमारे वेटनरियंस, हमारे कीपर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी केयर लेते हैं, उस स्टेज तक जब उनको एज ए ग्रुप हम फिर नेचुरल कंडीशन में रिहैबिलिटेट कर पाएँ। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है। काफ़ी सिचुएशंस में ऐसे आते हैं जब एनिमल्स आते हैं डिजीज़ कंडीशन में रहते हैं, फ्रेजाइल कंडीशन में रहते हैं, तो इनको 24/7 हमारे वेटनरियंस, हमारे कीपर्स ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि कैसे इनको ज़िंदा रखा जाए और कैसे फिर इनको रिहैबिलिटेट किया जाए। और ये रिहैबिलिटेट करते हैं तो ये 4-5 बच्चे जब एक साथ होता है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होते हैं, फिर इनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। तो एक नेचुरल सेटअप, एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो जब वाइल्ड में जाएं तो दे आर वेरी यूज्ड टू द एनवायरनमेंट ऑलरेडी। एब्सोल्युटली, हमारे रेस्क्यू सेंटर्स जो है हम कोशिश करते हैं कि नियर नेचुरल कंडीशन में रखें। इवन जहाँ पर केजेस होते हैं या ओपन इंक्लोजर्स होते हैं, हम वो फॉरेस्ट क्रिएशन करते हैं ताकि जो ह्यूमन इम्प्रिंट्स हो इंसानों के रहने के लिए या जो कैप्टिव कंडीशन से, उससे कैसे बचे और एनिमल को एक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है वो मेंटेन रहे। कोशिश हमारी यही रहती है कि ताकि एनिमल वाइल्ड में फिर अपने को अडेप्ट कर पाए और जी सके। एक राइट ऑफ पैसेज करके एक प्रोजेक्ट है जिस पे आप कार्य कर रहे हैं, व्हाई दैट प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ? जैसे कि बताया, हमारी जंगलें धीरे धीरे खंडित होते जा रही हैं, एंड जो आपने एलिफेंट की रिक्वायरमेंट बताया कि दे नीड टू मूव फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर, सो इट्स वेरी क्रिटिकल कि इनकी जो कनेक्टिविटी है, कॉरिडोर्स है, उसको बचाया जाए। तो वे बैक इन 2002 में हमने सोचा कि क्यों ना हम इन सारे कनेक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें देश में, ताकि कहाँ कहाँ पर ये कनेक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि इनको बचाने के लिए क्या करें। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो दूसरे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्चर्स है, सबको लेकर हमने एक रिसर्च किया था। और 2005 में हमने 88 कॉरिडोर्स पूरे देश में आइडेंटिफाई किया था, मिनिमम 88 कॉरिडोर्स, और उसमें क्या क्या थ्रेट है ईच एंड एवरी कॉरिडोर में, और ईच एंड एवरी कॉरिडोर को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाए, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। और फिर 10 साल बाद, बिकॉज लैंड यूज चेंज होते जा रही है, ह्यूमन नीड्स चेंज होते जा रही है, जंगल में भी चेंजेस आते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो फिर हमने सारे कॉरिडोर्स को रिविजिट किया और 2017 में एक सेकेंड एडिशन आया, ताकि फिर देखें कि जो 88 में कॉरिडोर्स थे वो आज की तारीख में कैसे हैं और कितने इम्पीड हो गए हैं या कितने में। और देखा गया कि 10 साल बाद करीब 7 ऐसे कॉरिडोर्स थे जो डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, एनिमल के लिए, एनिमल मूव नहीं कर सकती है। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग कि कैसे हम कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करें और कैसे वर्क करें कि ताकि ये कॉरिडोर्स बच सके और एनिमल मूव कर सके एक जंगल। सो यही है राइट ऑफ पैसेज की इंटायर
प्रोजेक्ट जो वे बैक इन 2000 में स्टार्ट किया था। तभी लैंडस्केपिंग की बात होती है। अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट्स, आपने असम की बात की, अरुणाचल प्रदेश की बात की, जहाँ पे यू हैव दीज टाइप्स ऑफ मैमिलियन क्रीचर्स. व्हाट अबाउट राइनोसरस? बिकॉज काजीरंगा इज ऑल्सो नोन फॉर द राइनो. तो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या, इज इट सिलेक्टिव रिगार्डिंग एनिमल्स, या आप सारे एनिमल्स को लेके चलते हो, लाइक elephants and rhinoceros? As I said, we are Wildlife Trust of India, and most of the conservation organizations, we are not really species centric. हाँ, कुछ species के elephants, tigers, because उनकी need है, और जैसे बताया कि being a flagship or umbrella species, इनको protect करते तो हम दूसरे species को भी protect कर पाते हैं. But हाँ, क्यों हम केवल राइनो, एलिफेंट्स या टाइगर की बात करें? इवन हम फ्रॉग्स के लिए भी बात करते हैं, इवन हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं, इवन हम समुद्र में कोरल्स या व्हेल शार्क के लिए भी कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि किस लैंडस्केप में क्या ज़रूरत है, किस लैंडस्केप में कौन सी स्पीसीज थ्रेटेंड हो रही है. तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उन स्पीसीज को, उन लैंडस्केप को, और सरकार के साथ, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, हमारे दूसरे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिल के क्या ज़रूरत है, क्या करना है उस एनिमल को बचाने के लिए या उस लैंडस्केप को बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं. How do you make tourism compatible with conservation? क्योंकि tourism से revenue आता है, it makes the wildlife sanctuary and the park economically sustainable. तो आप कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं? Well, frankly speaking, हम कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, नहीं करते हैं, बट वी डू असिस्ट द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को सपोर्ट करें, बिकॉज द स्पीसीज, द फॉरेस्ट, द लैंडस्केप, दे हैव टू अर्न फॉर देमसेल्फ, राइट. तो एक अच्छा एक मॉडल है कि सस्टेनेबल वे में कैसे आप टूरिज्म करें ताकि वो उनके टूरिज्म से इम्पैक्ट ना हो एनिमल पर, बट लोकल जो कम्युनिटी है उनको भी बेनिफिट मिले, सो दैट उनकी भी एक इंसेंटिव मिले कि वो जंगल को बचाएं, वो एनिमल्स को बचाएं. तो वो कोशिश करते हैं कि कैसे एक सस्टेनेबल वे में इको टूरिज्म को किया जाए ताकि उनकी इम्पैक्ट मेजरली ना पड़े लैंडस्केप पे या एनिमल्स पे, बट साथ ही साथ एक रिसोर्स जनरेट हो ताकि उस फॉरेस्ट को या स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए. जी, आई थिंक अर्जुन, दैट्स द राइट वे ऑफ कोएग्जिस्टेंस. सबको साथ लेके चलना है और सभी को जीने का उतना अधिकार है और उतनी तरह से अधिकार है जितना ह्यूमंस को है. Well, thank you so much, sir, for sharing this important information with us, and thank you for the work that you are doing. Thank you. Thank you so much. Well, that was Dr. Sandeep Tiwari with the Wildlife Trust of India. He's serving there as Director and Chief of Conservation. Next up is something that our contributories of photographs would like, which is Shot by Chance. शॉट बाय चांस में इस बार हमने शामिल किए हैं 2 वन्यजीव फोटोग्राफर के स्थिर चित्र. इस फोटो में आप देख सकते हैं 2 तेंदुए एक साथ अपना मुंह खोलकर मानो जोर से आवाज लगा रहे हैं. दूसरे फोटो में 4 सिंह एक ही ओर देख रहे हैं. यह फोटो आकाश दास ने भेजे हैं. अगले दोनों फोटो आदित्य डिकी सिंह के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वन्य जीवों के यह दुर्लभ फोटो उनको अमृत प्रदान कर रही हैं. पहले फोटो में चीतों की अटखेलियां बड़ी खूबसूरती से कैमरे में कैद की गई हैं. दूसरे फोटो में एक चमगादड़ पूरा मुंह खोलकर उल्टा लटका हुआ है. यह सभी सुंदर फोटो भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से आकाश दास का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आदित्य डिकी सिंह को दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. यदि आपके पास भी जंगल में लिए गए दुर्लभ फोटो या वीडियो हैं, तो आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेजें ddmorningshow23@gmail.com. Well, it's the most colorful segment that we have, Shot by Chance. We would like to thank all our contributors for contributing for this segment in particular.
और हमने बात की थी इमोशंस की, भावों की, तो एनिमल जितनी हमने फोटोज देखी सब में कितने अलग अलग इमोशंस है, इमोशन ऑफ एंगर, इमोशन ऑफ लव, एंड द कब्स आर प्लेइंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज देयर इन द पिक्चर्स. वेल वेरोनिका, अगर आप नोटिस करेंगे आकाश दास और आदित्य डिकी सिंह, हु इज नो लॉन्गर विद अस एनीमोर अनफॉर्चुनेटली, फोटोग्राफ्स में कॉमन थीम ये है कि दे ऑल yawning, they all have their mouths wide open, whether it's the two leopards or the bat itself. So we like to thank our contributors once again and like to remind our viewers कि अगर आप contribute करना चाहते हैं तो do email your images, shots to us on ddmorningshow23@gmail.com.